welcome to you all. Today is 17th of November and we're going to discuss the articles of The Hindu, and the articles which we have lined up for the discussion today happen to be ASEAN outreach, which is about the Prime Minister Modi's visit, which we have been discussing from past few days, that Prime Minister Mr. Modi is in Manila and he is there for ASEAN Golden Jubilee ceremony, and 50 years of ASEAN have been completed. So he's there, and on the sidelines of ASEAN he also met with the Quad members, with the Quad dialogue members, and apart from that he also held meeting with the Regional Economic Comprehensive Partnership and ASEAN Business Summit. So all these meetings have been held, and today's discussion basically focuses on India and ASEAN, and it also surrounds the China in between. Apart from it, we're going to discuss one more article which is about the left, right and center, which is a discussion series where basically topics are taken up and then the issues are discussed. Today we're going to discuss about an important issue, that is judiciary facing the crisis. There are three viewpoints. One is that no, judiciary is not facing the crisis. One is that yes, it is facing crisis, and another one is the balanced viewpoint. That is why we call it left, right and center. The third article which we are going to discuss is about the registration of the marriage, and apart from it, we're going to discuss one more article which is about the governor's overreach as far as Tamil Nadu is concerned, because in Tamil Nadu, in Coimbatore region, the governor met with the DC and other administrative officials, while as we know that the governor's role is merely that of the nominal executive. Governor is the nominal executive, and real executive happens to be the chief minister, because India has opted for the parliamentary system of government. So it is the violation of Article 167 on part of the governor, because Article 167 says that the governor can, the chief minister has to keep the governor apprised about the developments, but then governor cannot and in no way, call the administrative officials and, in a way run a parallel government when there is a government which has been elected by the people, which is there in power. So they cannot do this thing. This article will discuss all the issues related to it. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे आर्टिकल्स है, जैसे रानी पद्मावती को लेके एक मूवी बन रही है जो कि संजय लीला बंसाली बना रहे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई है, काफ़ी पिटिशंस फाइल की गई कि ये रानी पद्मावती का कोई कैरेक्टर ही हिस्ट्री में नहीं था, आप क्यों इसके ऊपर मूवी वगैरह बना रहे हो. तो चांसेस काफ़ी कम है कि कोई आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछे कि ये पद्मावती कौन थी या नहीं थी. तो इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आना काफ़ी मुश्किल है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे या डिस्कस ही नहीं करेंगे हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को. और भी है, जिम्बाब्वे में एक पॉलिटिकल क्राइसिस अभी चल रहा है. वहाँ पर जो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट थी उसको कूप कर लिया है, जो कि मिलिट्री है वहाँ पे, उन्होंने एक तरीके से उनको हटा दिया है वहाँ से फ्रॉम द पावर, एंड दे हैव ओवरटेकन इट. जिम्बाब्वे में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो अब पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गए हैं, तो इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आना काफ़ी मुश्किल है, तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है जी, तो चलिए आज का हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं with the ASEAN outreach. Now the Indo-Pacific region, basically, as we have already said, has been central to the global politics and economics, and recent days have reinforced the trends that have been emerging for quite some time. And we have seen that ये जो Mr. Modi है, he has met on the sidelines of ASEAN. उन्होंने ASEAN की मीटिंग को अटेंड किया जो कि अपनी 50th एस्टेब्लिशमेंट सेरेमनी को मना रहे थे. इसके अलावा उन्होंने RCEP इसके हेड से भी मीट की. क्वाड एक तरीके से एक साइडलाइंस में इसकी मीटिंग भी हुई, और इसके अलावा भी एक और मीटिंग हुई जो कि ASEAN बिजनेस समिट से रिलेटेड थी. तो चाइना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है रीजन में. चाइना के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जी जिनपिंग, उन्होंने क्लियर कहा है अपनी ग्लोबल स्पीच में कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, पहले से वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है. वो क्लियरली, हमने कल भी कहा कि जब 2008 का क्राइसिस हुआ तब तक वो चाइना जो था वो अपने आप को इकोनॉमिकली एक तरीके से सुप्रीम बना रहा था. बट आफ्टर 2008 ग्लोबल क्राइसिस, व्हाट दे डिड, they ventured into the politics and they said that now we are going to assert our global supremacy.
तो ये यहाँ पे यही कहा गया है कि उसी बात का रीइटरेशन किया, क्योंकि चाइना को पता है कि जो अभी यूएस में जो गवर्नमेंट है, जो यूएस गवर्नमेंट के हेड है, उनकी पॉलिसी जो है वो क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन से भरी हुई पॉलिसीज है, चाहे वो आउटलुक टुवर्ड्स एशिया हो या चाहे कोई और कंट्री हो। वो अपने पार्टनर्स के साथ उनकी उनकी टर्म्स जो है वो ठीक नहीं है, वो बिजनेसमैन की तरह डील कर रहे हैं जहाँ पर कि स्ट्रेटेजिक तरीके से डील करना चाहिए। तो इसी बात के चलते हुए उन्होंने क्लियरली कहा है अभी, जो चाइना में जो चाइना की सुप्रीमो है जी जिनपिंग, उनका ये कहना कि यूएस की जो गवर्नमेंट है उनमें सीरियसनेस नहीं है और पर्पस नहीं है, तो हम चूंकि कोई और अभी मतलब ग्लोबल लीडरशिप को एज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वी आर रेडी टू टेक द ग्लोबल लीडरशिप। ये एक तरीके का टैक्टिक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से वो प्रेशर डाल रहे हैं यूएस के ऊपर भी, और भी जो बाकी कंट्रीज इस रेस में लगी हुई है उन सब के ऊपर भी, कि वी आर गोइंग टू we are going to be we are going to be the supreme leaders of Asia Pacific, or for that matter of fact world, in the coming days through our economic prowess and through our political stability that we have got in our government। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने कहा कि आसियान के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो एक की पिलर है उनकी फॉरेन स्ट्रेटजी का, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है, यानी कि इनका सिंपल सा इशारा जो था वो चाइना की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रली रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, रूल बेस्ड आर्किटेक्चर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आए और वो एक तरीके से अपनी सुपरमेसी को असर्ट करे। उनका इशारा जो था वो सीधे डायरेक्टली जो था वो चाइना की तरफ था, क्योंकि चाइना जो है वो रीजन में सुपरमेसी असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक सिंबॉलिक मूव के तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने जो 10 आसियान के हेड्स हैं, उन्होंने उन सबको जो रिपब्लिक डे की परेड हो रही है 2018 में, उस फंक्शन के लिए बुलाया है। तो चाइना को टारगेट करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि आसियान का जो स्टडी सपोर्ट है टुवर्ड्स अचीविंग ए रूल बेस्ड रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, वही इम्पॉर्टेंट है, रादर देन हैविंग जो कि हम अभी कह रहे थे कि जो चाइना अपनी डोमिनेंस बनाना चाहता है खुद से, तो उसके मुकाबले में उन्होंने कहा कि एक रूल बेस्ड रीजनल आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए। ठीक है जी। तो जो ईस्ट एशिया समिट हुआ, जिसमें कि इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, एक तरीके से न्यूजीलैंड, यूएस और रशिया जो है वो मेंबर्स है, 10 आसियान मेंबर्स के अलावा। तो वहाँ पर भी मिस्टर मोदी ने यही कहा कि आसियान जो है वो एक ऐसे टाइम पे हुआ जहाँ पर ग्रेट ग्लोबल डिवाइड था, और अभी भी वो शाइन कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी, पीस ऑफ सिंबल ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के तौर पे वो भी शाइन कर रहा है। तो जो चाइना का प्रोफाइल जो है वो ग्रो हो रहा है, और जो बाकी कंट्रीज है वो अनश्योर हो गई है उसकी सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को लेके। तो एक नई अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया in the region, because US Donald Trump has given a mixed signal during his Asian trip, and he has said that his America first policy was on full display, where he even जो उनके अपने 5 जो मेजर पार्टनर्स है, उन्होंने उनको भी कहा कि अगर आपने हम बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर फोकस करेंगे, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर फोकस करेंगे, हमारा वो सब इशू नहीं रहेगा जो इससे पहले हुआ करता था, या इससे पहले की जो गवर्नमेंट्स थी जो वो करते थे, अब हम वो नहीं करेंगे। आप हमें फ़ायदा दो, हम तब आपके साथ एक तरीके से तब हम आपके साथ जो बाकी बायलैटरल रिलेशंस है वो रखेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दीज मल्टीलैटरल फोरम्स फॉर एनी पर्पस। तो एक जो चाइना है, चाइना एक्चुअली हैज मैनेज्ड टू इमर्ज एज अ बीकन ऑफ ओपन एंड फ्री ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर, and this has basically resulted in regional powers taking it upon themselves to shape the regional economic and security order। तो ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, बाकी कंट्रीज जो है वो भी एक तरीके से इस चीज़ से वाकिफ़ है कि चाइना अपने आप को ग्लोबल सुपरमेसी की तरफ ले जा रहा है। तो उन्होंने जो बाकी फोरम्स है, जैसे क्वाड बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया ताकि चाइना को रोका जा सके, एक तरीके से अपनी वो जो स्प्रेड है उनकी रीजन में, उसको रोकने के लिए क्वाड बनाया गया। या जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है जिसमें से यूएस ने विड्रॉ किया, उसको भी अब रिवाइव किया जा रहा है इसी वजह से, ताकि वो चाइना को कंटेन कर सके। तो आसियान के जो मेंबर्स है और इंडिया जो है वो काफ़ी एक बड़ा इकोनॉमिक रीजन है, और अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान इंडिया के साथ चौथा बड़ा पार्टनर है।
यानी कि फोर्थ बिगेस्ट पार्टनर एज फार एज आसियान कंट्रीज आर कंसर्न, एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न। और उसी तरीके से इंडिया जो आसियान का ट्रेड है वो 8th नंबर पे है। तो ये काफ़ी एक बड़ा इकोनॉमिक एक तरीके से रिलेशनशिप है इनके बीच में, और फॉर्मिडेबल सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो रही है। और अभी जो है अभी हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कोऑपरेशन को बढ़ाए और एक फेवरेबल बैलेंस जो है वो रीजन में लाया जा सके। तो इंडिया को जो है इंडिया नीड्स टू डू मोर कन्विंसिंग जॉब than being a beneficial strategic partner of ASEAN by boosting its domestic economic reforms agenda and enhancing connectivity within the region and increasing its presence in the regional institutions. So ASEAN nations basically should be clearer, and they should be more specific. They should be more specific in their expectations from New Delhi, and they should basically nudge for a deeper and more broad-based engagement, and because both countries are at the stake. Now let's talk about another very important article. It's about the जो तमिलनाडु के गवर्नर है, उन्होंने एक मीटिंग होल्ड की इन कोयम्बटूर, जहां पर कि उन्होंने रिव्यू किए प्रोग्राम्स को। तो बनवारी लाल पुरोहित जो कि अभी गवर्नर है, तो उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, और ही हैज़ बेसिकली लेफ्ट हिमसेल्फ ओपन टू द चार्जेस दैट ही हैज़ ब्रीच्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ हिज ऑफिस। सिंपल सी बात है। तो ये जो मिस्टर पुरोहित है, इन्होंने डीसी के साथ मीटिंग की, इन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ मीटिंग की, कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ मीटिंग की, और उस टाइम पे कोई मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं था। तो गवर्नर ने जब उनको बोला गया कि आप ऐसे क्यों, आपने ऐसे कैसे, मतलब आपने आर्टिकल 167 का वायलेशन किया है, और आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और आप ऐसी मीटिंग्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, यू कैन नॉट चेयर देम। तो गवर्नर का उन्होंने उस टाइम पे ये कहा कि वो अपने आप को फेमिलराइज करा रहे थे बाकी लोगों के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और वो उनका जो काम है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। इसमें कोई ये लेने की बात नहीं है कि वे आर नॉट गोइंग, मतलब हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड डिस्कशंस नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे थे। बट ये काफ़ी हार्ड एक्सेप्ट करना है ये जस्टिफिकेशन, बिकॉज इस प्लान उन्होंने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी विजिट किया फॉर ए सिमिलर रिव्यू, एंड इट डज नॉट ऑगर वेल फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सेज दैट गवर्नर इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव इज सीएम। तो आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करे गवर्नर को सारे डिसीजंस जो भी काउंसिल मिनिस्टर से रिलेटेड है to the administration proposals for legislation, but it also enjoins the chief minister to furnish all information relating to the administration as governor may call for. If Mr. Purohit wants to understand and how schemes are being implemented, he can seek the details from the chief minister, जो कि है अभी पलेन स्वामी, अंडर आर्टिकल 167 वो उनसे सीख कर सकते हैं। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, ही चोज टू अदर मेथड, जिसको कि बाकी लोग कहते हैं कि दैट इट इज द वायलेशन ऑफ 167। तो जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है इन विच मिस्टर पुरोहित इज एग्जिबिटिंग हिज ज़ील टू फेमिलराइज विद द एडमिनिस्ट्रेशन इज सिग्निफिकेंट। एक सेंस ऑफ ड्रिफ्ट है इन गवर्नेंस एज फार एज तमिलनाडु इज कंसर्न, एंड ये काफ़ी बिलीव किया जा रहा है कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु में वो ऑटो पायलट मोड में रन की जा रही है। चीफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी जो है असेंबली में वो डाउट में है, और उनका जो स्पीकर है उनको क्वालिफाई 18 डिसिडेंट लेजिस्लेटर्स टू शोर अप हिज सपोर्ट राइट विद इन द लेजिस्लेचर। तो ये एक इम्प्रेशन दे रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरीके से इट इज सीकिंग टू फिल द परसीव्ड पॉलिटिकल वैक्यूम, but it is caught in a bind on how to go about it because because इनका भी अभी पॉलिटिकल बेस जो है वो तमिलनाडु में स्ट्रांग नहीं है। तो देयरफॉर सेंटर जो है वो लीन कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को और रूलिंग एआईडीएम को to help the BJP to gain the political foothold. But the prospect of the state is coming under a spell of president's rule if the present regime formally loses its majority in the house on everyone's mind. Therefore, Mr. Purohit जो है वो familiarization exercise जो उनकी है is bound to be read for the signs of what future has in store. तो वो ये कह रहे हैं कि जो फ्यूचर में हो सकता है कि गवर्नर का रूल आ जाए तो भी वो इस प्रोसेस से अपने आप को फेमिलराइज कर रहे थे राइट। मिस्टर पुरोहित would do well not to fuel such a speculation.
तो none of this of course implies that the governor should refrain from taking an independent view of any matter or legislative proposal, but his functioning should be within the bounds of the established norms and conventions. तो जो भी अभी वहाँ पे चल रहा है तमिलनाडु में, जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, तो उसके चलते स्टिल यू हैव टू रेस्पेक्ट द ऑफिस एंड यू हैव टू, मतलब अभी रूल लगा नहीं है, जब लगेगा तो तब आप फेमिलराइज करो। अभी आप फेमिलराइज करके आप ऑफिशियल्स के साथ एक स्पेकुलेशन बढ़ा रहे हो, जहाँ पर कि आप ये कह रहे हो कि नहीं जी आगे चल के शायद प्रेसिडेंट का रूल लग सकता है स्टेट में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब एक और आर्टिकल है विच इज़ अबाउट दैट इज सुप्रीम कोर्ट फेसिंग एन इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। अब इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज दैट इज सुप्रीम कोर्ट फेसिंग एन इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस। नाउ देयर विल बी थ्री व्यू पॉइंट्स, वन विल बी प्रेजेंटेड बाय कोलिन गोंजाल्वेस, अनदर बाय गौरव भाटिया, and third one by Manish Tiwari. Now the first viewpoint, before we take up the main discussion, it's very important to discuss कि ये आर्टिकल आया ही क्यों, ये पहले इसके ऊपर डिस्कशन ही हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमने कुछ दिन पहले प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का केस डिस्कस किया था, जहाँ पर कि एक लिटिगेशन फाइल की गई थी दैट जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस टाइम पे जो इसकी हियरिंग कर रहे थे, तो उनको ब्राइब किया गया था इस केस में। So as a result of which there are corruption charges over the judges and there are other certain things, and further there is this forum shopping kind of a thing. Forum shopping का मतलब होता है कि जब आपको पता है कि आप उसी जज के पास अपना केस लेके जाओगे जिस जज से आपको पता है कि ये आपके फेवर में डिसीजन देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस डिस्कशन में आएंगी अभी। तो अभी का डिस्कशन जो है वो इस बात को लेके हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फेस कर रहा है करप्शन चार्जेस के चलते या और चीज़ों के चलते। तो इसमें पहला तो यह है कि जो जुडिशरी है उसके ऊपर काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। एग्जीक्यूटिव जो है वो नहीं चाहता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारे जो उनके केसेस है, वो केसेस नहीं हम कह सकते हैं, जैसे NJAC है, तो उन्होंने NJAC के ऊपर एक तरीके से जो कॉलेजियम सिस्टम है या बाकी चीज़ें जो है उनको स्क्रैप ही कर दिया है। तो जो मोस्ट टेलिंग इंडिकेटर ऑन असॉल्ट ऑफ जुडिशरी इज नॉन अपॉइंटमेंट। काफ़ी सारे जजेस जो है वो अभी अपॉइंट नहीं हो रहे हैं। तो जहाँ पर कॉलेजियम जो लिस्ट करता है सेंड अपॉइंट गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जो है उनको अपॉइंट नहीं करता है, और ये एक तरीके से डिफाइंस है हाईएस्ट ऑर्डर का। लेकिन जो एक बड़ी मतलब दुख की बात यह है कि जो जजेस हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक तरीके से दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड टेल एग्जीक्यूटिव कि हमारा जो काम है वो जजेस की नॉन अपॉइंटमेंट की वजह से पेंडिंग है, लेकिन वो कर पा रहे हैं। तो वो एक तरीके से ये कर सकते हैं, वो कि एक कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट करके वो सीधे 5 बेंचेस की जज बिठा के एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप जो है जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर क्यों बैठे हुए हो। दरअसल गवर्नमेंट जो है वो NJAC को इसीलिए लाना चाहती है एज पर कोलिन गोंजाल्वेस व्यू, कि वो जो है वो फेवर ले सके फिर जजेस से, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज वो उनके थ्रू अपॉइंट हो, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो जुडिशियल प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली रन नहीं करना देने चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधे डायरेक्शन दे सकते थे गवर्नमेंट को कि आप अपॉइंट करो जजेस को। तो शॉर्टफॉल जो है जजेस को ये काफ़ी टाइम से है वहाँ पे, और कोई साइन नहीं है इस चीज़ को रेक्टिफाई करने का हायर जुडिशरी के थ्रू। तो करप्शन जहाँ तक है जुडिशरी में काफ़ी रोल रहा है एग्जीक्यूटिव का, ताकि क्योंकि वो जजेस को रिटायरमेंट के बाद वो कहते हैं उनको हम आपको ऑफिस देंगे पोस्ट रिटायरमेंट, अच्छे पोस्ट देंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ही हाथ पे होता है। मतलब एक तरीके से वो उनको मतलब रेसिडेंस का लालच देके, अच्छी गाड़ी अच्छी लाइफस्टाइल का लालच देके वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अर्लियर एक तरीके से फेयर होता था जब कोई पॉलिटिशियन जो है वो अप्रोच करता था जज को, जो कि अभी नहीं है। जजेस जो है वो वेरी ऑफन दे आर वेरी अनफेयरली एट द रिसीविंग एंड, वो बोल नहीं सकते, वो टीवी पे कुछ कह नहीं सकते, अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो जो जुडिशरी है इट इज़ बेसिकली फेसिंग एन इंटिमिडेशन बाय द एग्जीक्यूटिव। दिस इज़ व्हाट कोलिन गोंजाल्वेस इज, ये किसी और का मेरा अपना व्यू पॉइंट नहीं है। सो व्हाई कांट इट इवॉल्व एन एनफोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट सो दैट एनी पॉलिटिशियन or party that tries to influence a judge will be immediately reported, punishment be meted. Now, the next viewpoint is that there is no constitutional crisis. It says that simply आप फोरम शॉपिंग कर रहे हो। जैसे हमने अभी कहा कि फोरम शॉपिंग क्या होती है, फोरम शॉपिंग सिंपली होती है जैसे कामनी जायसवाल और प्रशांत भूषण, जो कि अभी जो कि हम केस डिस्कस करते आ रहे हैं प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का लेके, तो वो चेला स्वामी के पास ही गए क्योंकि उनको पता था चेला स्वामी जो है वो उनके फेवर में एक तरीके से ये देंगे जजमेंट देंगे। और
तो उन्होंने उनकी तरफ से ही ये हो गया। तो एफआईआर जो है, एफआईआर में जज का नाम नहीं लेना चाहिए था, तो क्योंकि ये उससे जो चीफ जस्टिस के ऑफिस की जो डिग्निटी है वो डिक्रीज हो जाती है एक तरीके से। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से बेसिकली इज दैट कोई एफआईआर नहीं किया था, किसी जज के नाम कोई एफआईआर नहीं हो सकता है, क्योंकि एज पर रूलिंग ऑफ के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 कोई एफआईआर जो है रजिस्टर नहीं हो सकता अगेंस्ट सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये जो सारा एपिसोड है ये इसलिए किया गया था क्योंकि एक आर्टिफिशियल मतलब एक डिवाइड क्रिएट करने के लिए जो डीपली वाउंडेड है, विच हैज़ डीपली बेसिकली वाउंडेड द सुप्रीम कोर्ट। तो जो कंट्रीज सिटीजनरी है वो अवेयर है कि ये ग्रेट इंस्टीट्यूशन है और इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं चल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जो मनीष तिवारी है विच इज फ्रॉम कांग्रेस, ही सेइंग दैट जो यहाँ पे स्ट्रगल है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर की स्ट्रगल है। वी नो दैट जो 1982 में क्या होता था, इससे पहले जजेस की अपॉइंटमेंट जो थी वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू हुआ करती थी, बट 1993 में सेकंड जजेस केस में ये कहा गया कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होगी, और जिसमें कॉलेजियम सिस्टम ने वहाँ पे बात की गई थी कि जो चीफ जस्टिस की राय है वो इम्पॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस को कंसल्ट करके ही आप जजेस को अपॉइंट कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस को फिर रीइंफोर्स किया गया था 1998 में, जहाँ पर थर्ड जजेस केस इसका नाम दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि एक कॉलेजियम आप बनाओ सीनियर मोस्ट जजेस का, ठीक है, और वही जो है फिर अपॉइंट करेंगे जजेस वगैरह को। तो फिर लेटर ऑन जो जुडिशरी थी, जो एग्जीक्यूटिव था, उनको लगा कि नहीं हमने ज़्यादा पावर दे दिया जुडिशरी को, तो उस पावर को वापस लेने के चक्कर में उन्होंने फिर एनजेएसी लाया इन 2014, जिसको कि एक तरीके से कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन किया गया थ्रू जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने उसको स्ट्रक डाउन किया, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको स्ट्रक डाउन किया। और अब उनको बुरा लगा, गवर्नमेंट जो है उनको बुरा लगा कि इस तरीके से जो जुडिशरी है वो हम एक तरीके से हमारे ऊपर सुप्रीमेसी एग्जर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये वही टसल है, और इनफैक्ट वो तो ये भी शक जता रहे हैं कि इसमें शायद गवर्नमेंट का रोल है, क्योंकि ये जो अभी केसेस आ रहे हैं करप्शन के लेके, बाकी चीज़ों को लेके, ये जुडिशरी को बिलिटल करने की कोशिश है और एक तरीके से धमकाने की, डराने की कोशिश है एग्जीक्यूटिव के द्वारा जुडिशरी को। तो इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए रादर देन बीइंग एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ इन क्राइसिस। तो then there is another article which is regarding the registration of the child marriage. The judgment, which was basically interpreted as a strong warning against child marriage, the law commission has basically given a judgment where it has said that कि mandatory आप कर दो जो भी marriage होती है, जिस तरीके से child birth को आप compulsory बना रहे हो, right? The Law Commission of India suggested amendments to the Registration of the Birth and Deaths Act 1969 to make रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपलसरी, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ को कंपलसरी बना रहे हो, ताकि एक इफेक्टिव एंटीडोट के तौर पे एक्ट करे, जैसे चाइल्ड मैरिज है, बाईगैमी है, जेंडर वायलेंस के खिलाफ। लेकिन जो स्टेट लॉज है ऑन द सब्जेक्ट, ये कन्फाइंड होने चाहिए टू द प्रोसीजर, नॉट टू द सब्सटैंशियल मैनर। इसी तरीके से कमीशन ने यह भी सजेस्ट किया कि जो रजिस्ट्रार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ्स एंड डेथ्स, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज एज वेल। तो अमेंडमेंट जो इस बिल की है, इट शुड प्रोवाइड दैट इफ बर्थ और मैरिज और डेथ इज रजिस्टर्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, देन द रजिस्ट्रार शैल ऑन द पेमेंट ऑफ द लेट फी रजिस्टर द बर्थ और द डेथ विद इन 30 डेज, या 1 साल, या 1 साल के बाद, ठीक है जी। और इट प्रोवाइड्स फॉर अ पेनल्टी ऑफ 5 रुपीज़ पर डे इन केस ऑफ डिले ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप डिले करते हो रजिस्ट्रेशन का मैरिज को, तो 5 दिन आपको जुर्माना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द बिल सेज। Plus, if registrar finds that any entry of the marriage in register, kept by him is erroneous, or it is fraudulent or improper, he may correct or cancel the entries after hearing the parties concerned, subject to the state government rules. Commission further has called for village panchayats, local civil bodies, and municipalities to create awareness about the compulsory registration of the marriage and to make the marriage certificates mandatory for getting benefits of the welfare like agricultural loan वगैरह। ठीक है जी। तो these were all articles which we have discussed, and thank you very much for participating in today's discussion.